Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we have a topic, what is the writing process, or what are the steps, what are the steps that we have to follow in our any type of writings. Just here is the process of writing an essay, or even though we can apply these steps to any assignments, any any type of research paper, even though the most appropriate one related to your assignments, or definitely if there will be your final term and you are obliged and you are requested to follow these steps. As we have submitted your midterm and most of the students didn't tackle the need of the assignments or tackle the aspects that are most appropriate to you while you're writing. Do remember, if you have a topic, how many steps that you have to follow while writing an assignment or writing an essay. It doesn't mean either we are talking about an essay or either we are talking about an assignment, but both or any research criteria or any papers that we have to write, we have some specific procedure and specific criteria uh, toward that we have to follow. We have almost 5 steps to write any type of writing, just like assignment or essay. The first one is pre-writing. After that, writing the first draft, and planning and organizing and revising and editing and final draft. We have almost 5 steps to write an assignment or an essay. Let's move on to our first one. What is a pre-writing, or what is an introduction? Introduction. What is the writing process? Writing an essay takes time. That's why writing is often referred to as a process. If we do not make a process, or if we do not follow a process, we can never ever be able, or we are not, or we will not be capable enough to write a comprehensive writing. In other words, there are several steps to go through before you have a complete, easy essay ready to turn in for a grade. Or in this lesson, we will talk about those steps, and they are first one pre-writing, and second one organizing, and third one writing the first draft, and fourth one revising and editing, and fifth one final copy. Today, hope so, we will discuss the first two almost that will be easy for you to understand step by step. First one, pre-writing. What is a pre-writing? Step one, pre-writing literally means before writing. जब आप लिखना शुरू करते हैं, उस लिखने के शुरू करने के अमल से पहले आपको क्या करना पड़ता है? What are the things that you have to follow, or how many things that you have to tackle before your before you start your writing? आपको अपनी राइटिंग शुरू करने से पहले कितने अमल करना पड़ता है, या कौन कौन सी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? दैट इज वेरी नेसेसरी, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर राइटिंग. Before you actually begin writing your essay, you will need to do the following step. The first one, you have to choose a topic, or if you have an appropriate topic, that's a good one. Or if you are bound, or if you are directed to write an assignment, so definitely your teachers will assign, or your teachers has assigned you an assignment or a topic that is easy to choose any type of topic. But no matter what the topic is, but the first thing is, if you have no topic, first of all you have to choose that topic. अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, तो पहला स्टेप जो है राइटिंग के अमल में, आपको उसके बारे में एक टॉपिक चूज करना है. जब टॉपिक चूज कर लेंगे, समटाइम ऐसा है कि अगर आप असाइनमेंट्स लिखना चाह रहे हैं, तो असाइनमेंट्स को लिखते वक्त आपका टॉपिक ऑलरेडी चूजन होता है, जैसे कि टीचर्स ने ऑलरेडी आपको असाइन किया होता है. अगर आपके पास असाइंड टॉपिक है, तो फिर तो देन दैट्स गुड. अब ये तो अच्छी बात है, अगर आपके पास असाइंड टॉपिक है, यू नीड नॉट वरी अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव टू चूज अ टॉपिक. But if you do not have a topic, the first step is uh, you to do, that is to choose your topic. After choosing the topic, the second step that is most appropriate to them, that is brainstorm or generate the ideas that you want to indicate. The first step is to choose a topic that you want to write, or topic to whom do you want to write. After
that the second step is brainstorming, or the brainstorm, or generate the ideas for your topic. How you can generate the idea for your topic? Focus in one central ideas, one central point, or that is your main topic. If you suppose, if you, what do you think? If I want to stay, if I want to say that you brainstorm for a topic, तो what would you say? और if अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जी सोचो, तो what do you think? आप क्या सोचेंगे? आप, आपके पास, you have so many things to think, आपके पास बहुत सी चीजें होंगी सोचने के लिए, बट अगर आपके पास एक क्राइटेरिया आ जाए, एक स्पेसिफाइड टॉपिक मिल जाए, तो तमाम की तमाम सोचें आपकी उस टॉपिक की गिर्द घूम जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ सोचो, तो आप कहेंगे सर हम क्या सोचें, हमारे पास तो बहुत से काम है सोचने के लिए। आपकी लवर है, आपके लवर्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके रिलेशंस हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, आजकल नहीं ओपन हो रही, ये बड़ी दुख की बात है, सबसे ज्यादा थिंकिंग तो यही हो रही है। इट्स मीन कि आपके पास सोचने के लिए बहुत से टास्क हैं, और कुछ ऐसे स्टूपिड होंगे कि सर टाइम नहीं सोचने के लिए। बात जब थिंकिंग की आती है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट इज बीइंग दैट यू हैव द माइंड टू राइट अबाउट दैट टॉपिक। आपको उस चीज के बारे में सोचना है, कि आपने सोचना है, मतलब कि सोचना है। लेकिन बिफोर सेलेक्टिंग द टॉपिक वी कैन नेवर एवर डू अबाउट द थिंकिंग। हम सोच नहीं सकते अगर हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। जब हम टॉपिक चूज कर लेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों सोचो, तो आप क्या सोचेंगे? यू हैव मैनी थिंग्स टू थिंक, आपके पास सोचने के लिए बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ बच्चों आप रेस्क्यू के बारे में सोचें, तो देन आपकी जो थिंकिंग है वो नैरो डाउन हो जाएंगी, एक बहुत बड़े ब्रॉड टॉपिक से एक स्मॉल टॉपिक की तरफ आ जाएंगी। अब रेस्क्यू के बारे में सोचना है, तो डेफिनेटली रेस्क्यू एक टीम का नाम है। आप समझते हैं, रेस्क्यू टीम आती है, रेस्क्यू मिशन होते हैं, रेस्क्यू एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है, आपके सर्वाइविंग करती है, सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, डिफेंड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना टॉपिक सोचना है कि मैंने किस चीज के बारे में सोचना है। अगर आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होगी वो बिल्कुल उस टॉपिक की तरफ होंगी जो आप सोचना चाह रहे हैं। और जब आपके पास एक टॉपिक है, सपोज आप कहते हैं जी हम रेस्क्यू के बारे में एक ऐसे लिखना चाहते हैं, तो हम रेस्क्यू के बारे में जब ऐसे लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैं आपको यहाँ पर कुछ हिंट देना चाहता हूँ। अगर आप रेस्क्यू के बारे में एक ऐसे लिखना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचेंगे कि रेस्क्यू जो हमारे पास है, इसका मतलब क्या है? क्या रेस्क्यू का मतलब हेल्प करना होता है? आप खुद से सवाल करें, क्या रेस्क्यू का मतलब प्रोटेक्ट करना होता है, या इसके अलावा या लोगों को बचाना होता है, सेव करना होता है, या आप कह लें कि सेफ गार्ड करना होता है, या गार्ड करना होता है? आप बहुत से मतलब निकाल लेंगे। हाँ सर रेस्क्यू का मतलब ये भी है, रेस्क्यू का मतलब ये भी है, रेस्क्यू का मतलब हेल्प है, प्रोटेक्ट है, सेव है, गार्ड है। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया रेस्क्यू का मतलब क्या है। रेस्क्यू भाई एक टीम होती है, और ये भी हमने सोच लिया। जब हमने ये भी सोच लिया रेस्क्यू का मतलब मदद करना है, हेल्प करना है, लेकिन ये भी पता है रेस्क्यू की टीम होती है, फिर हमें ये भी पता होगा कि इस टीम के अंदर बंदे कितने हैं। इट्स मीन हम स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने एक जर्नल टर्म सोची, जर्नल टर्म हमने सोचा कि हम सोचेंगे, लेकिन हमें नहीं पता हम क्या सोचेंगे। आफ्टर दैट वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द रेस्क्यू। फिर हमने ये समझा कि हमने सोचा कि हम रेस्क्यू के बारे में सोचेंगे, और जब हमने ये सोचा कि हम रेस्क्यू के बारे में सोचेंगे, तो हमने कहा चले हम रेस्क्यू के बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये होगी कि हम उसका इंट्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे। इसका मतलब क्या है रेस्क्यू का, और रेस्क्यू का मतलब को डिफाइन करेंगे। रेस्क्यू का मतलब होता है मदद करना, हिफाजत करना, बचाना, डिफेंड करना, ये सारे मतलब रेस्क्यू के हैं। फिर आप करेंगे हाँ रेस्क्यू तो एक टीम का नाम है। अगर रेस्क्यू टीम का नाम है कि आपके पास एक नई थिंकिंग आई है, जब वर्ड टीम का आपके सामने आ गया है, तो डेफिनेटली देयर विल बी और देयर आर सम मेंबर्स बिलोंगिंग टू दैट स्पेसिफिक टीम। इसका मतलब फिर टीम के बारे में कुछ आपके पास कुछ रिव्यूज भी होंगे। हाँ यार वहां पर यार एक डॉक्टर भी होता है जो फर्स्ट एड देता है। हाँ यार एक ड्राइवर, सबसे बड़ी बात है ड्राइवर होता है जो लेके आता है उनको। हाँ यार उस टीम के अंदर एक वाटर सप्लायर भी होता है। हाँ हाँ होता है। फायर ब्रिगेडियर भी होता है। हाँ यार ये भी होता है। केयर टेकर भी होता है। हाँ यार केयर टेकर भी होता है उसमें। मतलब कि आप वन बाय वन उस टीम के मेंबर्स को मेमोराइज कर लोगे, आप सोच लोगे कितने पर्सन होते हैं इस चीज के बारे में। जब आपका ये दूसरा स्टेप आ जाएगा टीम का, फिर आपका तीसरा स्टेप आएगा, हाँ यार इनकी जरूरत कब पड़ती है हमें। हमें जरूरत कब पड़ती है? जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई बिल्डिंग क्रश होती है, जब कोई हादसा होता है। हादसा वो रोड के ऊपर भी हो सकता है, हादसा वो बिल्डिंग के ऊपर भी हो सकता है। फिर आप ये इनमें से कोई एक चीज डिसाइड कर लेंगे, हमने कोई रोड एक्सीडेंट लेना है या हमें कोई बिल्डिंग एक्सीडेंट लेना है, कौन सा लेना है हमने। हम ले लेते हैं जी, हमने एक बिल्डिंग को ले लेते हैं।
हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि बिल्डिंग होती है। जो बिल्डिंग होती है, टीम को हमने डिसाइड कर दिया, टीम के अंदर हमारे पास मेंबर्स होते हैं, और फिर मेंबर्स के बाद हमने मेंबर सारे डिफाइन कर दिए कौन कौन से मेंबर है। फिर हमने बिल्डिंग सेलेक्ट कर ली। अब बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग कितनी बड़ी थी, प्राइवेट थी या नॉन प्राइवेट थी, प्राइवेट थी या पब्लिक थी, हमने ये भी डिसाइड कर लिया भाई ये तो पब्लिक बिल्डिंग थी। कितने लोग थे वहां पर, भाई 20 लोग थे वहां पर। हम ये चीजें सोच रहे हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग ओवर द टॉपिक, हमने ये सोचना शुरू कर दिया। तो ये हमारी सारी की सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। और जब हम सोच लेते हैं बिल्डिंग है भाई, प्राइवेट थी, पब्लिक थी भाई, वहां पर 20 लोग बैठे हुए थे, इसके अलावा क्या था वहां पर भाई, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई थी बहुत ज्यादा। हाँ यार ये बात मानने वाली है। फिर हुआ क्या था भाई, फायर बर्न हो गई वहां पर, होए फायर बर्न हो गया, ये बड़ी बड़ी कमाल की बात है। आपने ये भी सोच लिया कि आग लगी थी, लेकिन आग लगी किस वजह से थी, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ था? अगर शॉर्ट सर्किट हुआ था, इट्स मीन आपका बड़ा दिमाग काम कर रहा है, आप सोच रहे हैं इसके बारे में। फिर शॉर्ट सर्किट हुआ क्यों था, किसकी वजह से हुआ था, केयरलेसनेस की वजह से। और केयरलेसनेस किसकी थी, आपके इलेक्ट्रिशियन की, डेफिनेटली उसकी होगी ये। तो इट्स मीन आप सोच रहे हैं, आप जब सोच रहे हैं तो आप इन चीजों के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, ये स्टेप भी मिल गया। फिर क्या हुआ अभी, जब ये मामला हुए तो फिर ये हुआ, वहां पर लोग जमा हो गए। फिर जब लोग जमा हुए तो क्राउड आ गया वहां पर, जब क्राउड आया तो फिर वहां पर पुलिस आ गई। फिर जब पुलिस आई तो वहां पर रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने के लिए आ गई। और जब रेस्क्यू टीम पहुंची वहां पर, उन्होंने कुछ को बचा लिया, कुछ हॉस्पिटल पहुंच गए, और कुछ वहां पर जिंदा रहे और कुछ मर गए। कुछ किल कर दिए गए, यहाँ सेक्रीफाइस कर ली लाइफ, और कुछ सेव कर लिए गए। और एट द एंड पे हम क्या कहेंगे कि एक बंदे की लापरवाही की वजह से 10 लोग मारे गए और बहुत सा नुकसान हो गया। तो ये हमने एक थिंकिंग की है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स मीन कि जब हमारे पास कोई टॉपिक होगा, जब हमारे पास कोई टॉपिक होगा, डेफिनेटली हम पहले ये सोचते हैं कि ये है क्या, टॉपिक चूज करना है, फिर उस टॉपिक के बारे में हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक थिंकिंग का प्रोसेस है जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फिर हम इसका मेन आइडिया निकालते हैं। मेन आइडिया क्या है, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी एक्सीडेंटल हादसे को रोकना या उसे सेव करना। वो रोक तो नहीं सकते लेकिन बचा तो सकते हैं जो लगे लोग उनसे मुतासिर हुए हैं। लिहाजा हमारा बेसिक कंसर्न क्या है, हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि हम प्री राइटिंग का पहला स्टेप आ रहे हैं। पहले स्टेप में हम ये करते हैं, सबसे पहले टॉपिक चूज करते हैं, फिर हम उस टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, मतलब कि हम सोचना शुरू करते हैं। हम जितना भी सोच सकते हैं उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं। फिर ज्यादा कंसर्न हमारा मेन आइडिया की तरफ होता है, हम करना क्या चाह रहे हैं। हमने बिल्डिंग को क्रश करना था या कोई एक रोड एक्सीडेंट करना था। अगर हमारा बिल्डिंग का क्रश था तो फिर हम सारे का सारा कंसर्न जो होगा हमारा उस बिल्डिंग की तरफ होगा। लेकिन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हमने चीजें इकट्ठी की थी, जो हमने सोचा था, अब हमें नहीं पता हमने टीम को पहले लिखना था या रेस्क्यू की डेफिनेशन पहले करनी थी, पुलिस को पहले डिफाइन करना था या क्राउड को पहले डिफाइन करना था, लोग मारने थे या हॉस्पिटल पहले जाना था। हमने सारी बातें कह दी हैं, बट वी डिडंट अरेंज देम, हमने उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं किया कि ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हमने मॉडिफाई नहीं किया। हमने सोच लिया सारा कुछ, लेकिन हमने उनकी तरतीब नहीं लगाई। दूसरे स्टेप पे हम उनकी लगाते हैं तरतीब। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम चीजों को डिफाइन करते हैं, चीजों के बारे में बताते हैं। तो हमने सोचा था हम रेस्क्यू के बारे में बात करेंगे, तो इंट्रोडक्शन का जो आपका टॉपिक होगा, हम कहेंगे रेस्क्यू मीन्स टू हेल्प, टू सेव, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द पीपल इन अ क्रूशियल टाइम। लो जी, बात बन गई, इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। अब ये भी बात बन गई, अब इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 5 जुमले मैंने कहे, 5 वर्ड्स मैंने कहे, और 5 सेंटेंसेस के ऊपर आप एक एक सेंटेंस भी बनाएंगे तो आपका पैसेज इंट्रोडक्शन का पूरा हो जाएगा। फिर टीम क्या है जी, हम कहते थे रेस्क्यू टीम अराइव्ड देयर लाइक एन एंजल। रेस्क्यू टीम वहां एक फरिश्ते की तरह पहुंची एंड सेव द लाइव्स ऑफ द मेनी पीपल्स, और बहुत से लोगों की जान बचा दी। अब ये दूसरी लाइन होगी आपके पास। अब हम इसे कर रहे हैं अरेंजमेंट। हम कहते हैं पहला नंबर हम देते हैं इंट्रोडक्शन का, ठीक है जी। फिर हम कहते हैं दूसरा नंबर देते हैं हम जी टीम को, रेस्क्यू टीम को। फिर हम कहते हैं तीसरा नंबर हम देते हैं बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग को आग लगाई गई थी। फिर हम फोर्थ नंबर देते हैं क्राउड को, सबसे पहले लोग वहां पर क्राउड इकट्ठे होते हैं। फिर हम 5 नंबर देते हैं पुलिस को, पुलिस वहां पर आ जाती है। फिर 6 नंबर हम पुलिस और पीपल्स और रेस्क्यू ने मिलकर लोगों को जो बचाया था, फिर हम हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। और हॉस्पिटल पहुंचाएंगे जब हम, तो देन हम कुछ लोगों को मार देंगे, कुछ सेव कर लेंगे, और आफ्टर ऑल हम कंक्लूड कर देंगे, इट्स मीन वी have organized our conversations.
इसका मतलब ये हुआ कि हमने टॉपिक को ऑर्गेनाइज कर दिया, हमने चीजों को मिनिमाइज कर दिया। और जब हमने चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं और कौन कौन सी चीजें इसके बाहर जाती हैं। और जब आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे किसी भी चीज के बारे में, जब किसी भी चीज के आप डिफाइन कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। मेकिंग एन आउटलाइन कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज व्हाट यू वांट टू राइट। जब ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले बात हमने लिखी थी, पहली में हमने बनाया था इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन की बजाय आप उसे वहां पर एक आउटलाइन बना दें। आउटलाइन क्या बनाए जी, रेस्क्यू मीन्स टू हेल्प, टू सेफगार्ड, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड द पीपल इन अ क्रूशियल टाइम। और अगर आप ये लिखते हैं तो ये आपकी आउटलाइन बन गई है। जब आपके पास आउटलाइन बन गई है तो हमने इसमें 5 वर्ड्स ऐड किए। हेल्प का वर्ड ऐड किया, सेफगार्ड का वर्ड ऐड किया, प्रोटेक्ट का वर्ड ऐड किया, डिफेंड का वर्ड ऐड किया। इसमें आप एक एक वर्ड के ऊपर अगर एक एक जुमला भी लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली आप इन चीजों को कवर कर लेंगे। तो जब हम इनकी आउटलाइंस बनाएंगे तो फिर हमने पहले आउटलाइन बना दी, पहले हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑर्गेनाइज करते हुए हमारे लिए बेहतर है कि हम उसकी आउटलाइन बना लें। जब हम इसकी आउटलाइन बना लेंगे तो डेफिनेटली वी आर इन अ पोजीशन टू राइट अबाउट द थिंग्स। जब हमारे पास लफ्ज होंगे, हमारी मेमोरी हमारे सामने पड़ी होगी, हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया होगा, तो फिर हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको ये असाइनमेंट भी बना सकते हैं। सपोज आपसे आपको दी जाती है असाइनमेंट, एक टॉपिक दे दी जाता है, तो उस टॉपिक को पहले ब्रेकआउट कर दो, उस टॉपिक के चंक्स बना लो। चंक्स बनाओ कि मेन पॉइंट कौन सा है उसमें, दैट यू वांट टू और दैट यू आस्क टू राइट। कौन सी बात है जो आपसे पूछी गई है, आप उस पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, जो मेजर वर्ड्स हैं उन तमाम वर्डों को अंडरलाइन करो। फिर उन वर्डों के बारे में सोचो कि ये वर्ड हैं क्या, इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनका मतलब क्या है, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। और फिर उससे रिलेटेड डाटा नेट से सर्च मारो, वो वर्ड लिखो, उसकी डिटेल देखो, उसकी टाइप्स देखो, उसके काजेस देखो, उसके इफेक्ट देखो, फिर उस सारे डाटा को इकट्ठा करो। पागलों की तरह पूरे का पूरा टॉपिक मत लिख दो नेट के ऊपर, उनमें से वर्ड ढूंढो जो बेसिक वर्ड्स हैं, सेंट्रल, ट्राई टू फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। अगर आप सेंट्रल आइडिया ढूंढ लेते हैं, यू आर इन अ पोजीशन टू राइट योर टॉपिक। बिलीव मी, आप अपना टॉपिक लिख लेंगे। कंफर्म कि आप इस पोजीशन में होंगे कि अपनी बात को डिफेंड कर लेंगे। लेकिन डिफेंड करने के लिए आपको उस चीज को देखना है कि आप इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। इन अ सेकंड स्टेप, that is organizing, you will learn how to make an outline, you will learn how to organize an essay or any topic, you will learn how to rearrange the things that you have in your mind। आपके जहन में जो बातें हैं, जो आपने सोची हैं एक टॉपिक के बारे में, आप उन्हें किस तरह अरेंज करेंगे, इस लेवल पे आप इनको असेस करेंगे। सो मैं I do not want to burdenize you people, but do remember, आज मैं just 2 points बता रहा हूँ और 2 points को अच्छी तरह से डिटेल में देखो कि क्या चीजें बात बयान की जा रही हैं। और लास्ट 3rd पॉइंट हम बात कर लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। स्टेप 2, ऑर्गेनाइजिंग। स्टेप 1 आपके पास प्री राइटिंग, और प्री राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग। और you have an assignment to write any type of topic, any type of essay। एक पेज के ऊपर किसी भी किस्म का टॉपिक, उसकी आप टॉपिक को सोचें, उसे ऑर्गेनाइज करें और उन स्टेप्स को इसके ऊपर अप्लाई करें। That's all for today. If you have any question, you can ask.